Good afternoon, class. So, in the previous class, I had explained you the image formation by concave lens. Mirror. Concave mirror, है ना? We studied different cases. क्या किया था हमने उसमें? This is a concave mirror. ये क्या है? Concave mirror है और हमने क्या किया था? This is pole, focus, and center of curvature. So what we did, we brought the object from the position which is beyond the center of curvature to close enough in a range of focal length. यहाँ तक हम लोग लेके आए थे ऑब्जेक्ट को and we observed different types of images, है ना? What kind of images formed in each case. Now we are going to discuss the image formation by convex mirror. Convex mirror का देखेंगे image formation. For this, you have to remember two simple rules. जैसे मैंने concave mirror के केस में 3 rules बताए थे आपको. Similarly, here you have to remember 2 simple rules for the formation of image formation by convex lens. So, image formation by convex mirror. Convex mirror. ठीक है? So, what are the rules that you have to remember? The first one says that this is your convex mirror. क्या होगा इसमें? अंदर से रफ होगा, बाहर से the bulging outer bulging side will be polished, or you can say the outer bulging side is smooth. ठीक है? So see here, this is the convex mirror. ये convex mirror है. क्या होगा यहाँ पे? See, this is the principal axis. This is principal axis, and here lies the focus and center of curvature somewhere beyond this. So just remember one rule. The first rule is that if a ray comes parallel to the principal axis, see this ray is parallel to principal axis, isn't it? If the incident ray is parallel to principal axis, इसका नेचर होता है जैसे कॉन्केव तो क्या करता था, उसको फोकस पे ले जाता था, लेकिन कॉन्वेक्स का नेचर होता है टू डाइवर्ज द रे. ये इस तरीके से इसको डाइवर्ट करेगा सच दैट इट अपीयर्स लाइक इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस फोकस. यानी हमको ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ये रे डाइवर्ज हो रही है, समवट लाइक दिस. सो हियर गोज द रिफ्लेक्टेड रे. Means the incident ray which is parallel to the principal axis after reflection appears to be diverging from a point which is focus which lies beyond the mirror. ठीक है? तो parallel ray आएगी, वो diverge हो जाएगी, है ना? मतलब अगर इधर से भी आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, this is the incident ray suppose parallel to principal axis. After reflection, it appears to diverge in this way. It appears to diverge from this focus. देखो रेस तो डाइवर्जन क्यों कह रहे हो? रेस तो इस तरीके से सीधी आ रही है, लेकिन डाइवर्ज होके इस तरीके से फैल रही है सब तरफ, है ना? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. और ये क्या करेगा? द रेस अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस फोकस व्हिच लाइज बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इंसिडेंट रे एंड इट अपीयर्स टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट. इसको एक्सटेंड करो आगे, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ज होके आ रही है. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट रूल. रूल नंबर 2 इज this is your convex mirror. This is your convex mirror. This is principal axis. ठीक है? ये पोल है आपका, ये फोकस है. सो द रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज जिस एंगल पे इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी, लेट अस सपोज इट कम्स एट एंगल ऑफ 30 डिग्री. It is somewhat 45 degree. Let's say this is 45 degree. 45 डिग्री पे आएगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी सेम एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से. ठीक है? This rule is applicable to concave lens also. Mirror, and sorry. This rule is applicable to concave mirror also. Convex mirror में क्या होगा? यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा कि इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे आ रही है, एंगल इज मेड विद प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना रही है वही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ.
Are these two rules clear? Then we'll make the image of an object. इसमें सिर्फ एक ही केस होगा इमेज का, जैसे कि हमने तो क्या किया था कॉनकेव मिरर के केस में, we kept the object at a point beyond center of curvature, then between focus and center of curvature, and then focus and pole. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक केस स्टडी करेंगे. So these rules are clear. Now let us understand the image formation of an object by a convex mirror. Pay attention. This is the convex mirror. Convex mirror. Principal axis. This is point of focus, principal focus. This is pole. And somewhere here I have placed the object. ये मैंने यहाँ पे object रखा हुआ है A, B. Anywhere in front of the convex mirror. तो ये क्या करेगा, अब कैसे रेस बनेगी देखो यहाँ पे ध्यान देना, pay attention. First of all, the rays, incident ray goes parallel to the principal axis. It goes parallel to the principal axis. This is the incident ray from the object. Now, what happens? It gets reflected from this point. It appears like it is getting reflected from this point, like this. ठीक है? तो ये यहाँ से इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गई. डाइवर्ज इस तरीके से हो गई कि हमको लगेगा कि इस पॉइंट से ये रे जा रही है. It doesn't actually go from this point, but it appears like that. Second incident ray आएगी pole पे with a certain angle depending on the size of this object. ये incident second incident ray है. इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगी. ठीक है, हम इमेज कैसे बनाते हैं? वी ट्राई टू intersect these reflected ray, but are they actually getting intersect at any point? ये लग रहा है कि मिरर के सामने कहीं पे इंटरसेक्ट होगी, नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से जा रही है. एक रे तो इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, बट यू कैन थिंक ऑफ इट बीइंग इंटरसेक्टेड एट दिस पॉइंट. ये ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं तो इट अपीयर्स लाइक इट इज मीटिंग समवेयर बिहाइंड द मिरर, इजंट इट? ऐसा लग रहा है ना कि these rays meet somewhere behind the mirror. यहाँ पे, so यहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी. यहाँ से जहाँ पे भी डॉट बन रहा है इनके मीट होने के बाद वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. जहां डॉट बन रहा है वहां पे एरो बनेगा, है ना? सो A dash, B dash. Now see what are the characteristics of this image. इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. कैसी इमेज बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन. इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. Behind the mirror. Image is formed behind the mirror. Second case क्या है? कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है. कैसी है? Smaller in size. So you can say image is diminished. Image is diminished or smaller in size as compared to the object. The third case is image is erect. है ना? सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की एरो भी ऊपर है, इसकी भी एरो ऊपर है. So image is erect. And you can see here the image is not formed by the actual intersection of the reflected rays. Rays actually meet नहीं कर रही. It just appears कि rays यहाँ से आ रही हैं और यहाँ मिरर के पीछे meet कर रही हैं. So it is a virtual image. The image is virtual, thus it cannot be taken on the screen. इस केस का एग्जांपल आप रोज देखते होंगे अपने व्हीकल्स में. जो साइड में रेयर व्यू मिरर होता है, कार में, बाइक में, सब में जो साइड में रेयर व्यू मिरर होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. द पर्पस ऑफ दैट मिरर इज इट मेक्स स्मॉल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच आर कमिंग एट द बैक. हमारी व्हीकल के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी गाड़ियां आ रही है उसकी छोटी इमेज बना के हमको दिखा देता है. तो क्या करते हैं, काफी वाइड एरिया कवर कर लेता है छोटी छोटी इमेजेस बना के. यहाँ पे अगर एक और ऑब्जेक्ट होगा उसकी भी ये छोटी सी इमेज बना देगा. दूसरी चीज, ये
काफी सारा एरिया कवर कर रहा है. सो बिहाइंड आवर व्हीकल वी कैन सी अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ इमेजेस. हम काफी सारा एरिया देख सकते हैं हमारे व्हीकल के पीछे का, कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी हमको ओवरटेक करना चाह रही. सो दिस इज हाउ दिस मिरर इज यूजफुल. इट कैन बी यूज्ड एज अ rear view mirror because it can diminish the images of the object. इस ऑब्जेक्ट की इमेज को डिमिनिश करके दिखाता है. तो हम क्या करते हैं, काफी सारे एरिया हमको पीछे का दिख जाता है विद स्मॉल इमेजेस. ठीक है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. यहां तक समझ आया? यस और नो? टेल मी, इज देयर एनी डाउट? Is it clear to each one of you? Okay, Sandeep, first rule says that if a ray is parallel to principal axis, जैसे कि ये वाली ray है, it is parallel to principal axis. After reflection, मैंने आपको फोकस की डेफिनेशन में भी बताया था. After reflection, it gets diverged. ये diverge हो जाएगी. Incident ray which is parallel to principal axis, after reflection gets diverged. The diversion is such that it appears like this ray is coming from this point of focus. It appears like this ray is coming from this point, which is the focus of this mirror. Okay? But it is not actually coming from this point. It only appears like this ray is coming in from this direction, from the focus, principal focus, right? So this is the concept. This is the first rule. If a ray comes parallel to principal axis, you have to divert it. इस तरीके से divert करेंगे और it should appear like it is coming from this point. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्जन उसका इस तरीके से होगा कि हमें लगे वो कि वो इस पॉइंट से आ रही है रे. एक्चुअली इस पॉइंट से नहीं आ रही है, बट ये हमको लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है. ठीक है संदीप, समझ आया? इज इट क्लियर? रूल नंबर 1. यस और नो? ओके क्लास, एनी अदर डाउट? किसी को भी कोई डाउट है? हैव यू ऑल फॉलोड टिल हियर? आगे बढ़े. Very good. So come to the next topic, which is how to distinguish between a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror. इसमें कैसे differentiate करें? On the same page, page number 236 देखेंगे. 236 पे how to differentiate between a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror. Plane mirror, concave mirror, and convex mirror can be distinguished on the basis of image they form when the object is placed quite close to them. Under such condition, plane mirror forms a virtual and erect image of the same size as that of the object. Second, concave mirror forms virtual, erect, and magnified image. And convex mirror forms virtual, erect, and diminished image. Now, how to differentiate? The topic is that how would you differentiate between. अच्छा ये ध्यान रखना, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो diminished image बनाइए इसमें, है ना? ये ध्यान रखना. Remember this point. This will be used here in this topic. That how will you differentiate whether a given mirror is plane mirror or a convex mirror or a concave mirror? How will you differentiate this thing? You can know this thing by forming an image of an object lying close to it. देखो, अगर कोई प्लेन मिरर है, सपोज प्लेन मिरर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था. लेट अस सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके पास में रखा हुआ है तो ये इतने ही डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर दूर ही यहाँ पे इमेज बना देगा इसकी, है ना? एंड दिस इमेज विल बी इरेक्ट, virtual, and same size. This is very important. This point is very important, that the image is of the same size as the object and at the same distance. ठीक है? This is point number 1. The characteristics of a image formed by an object when it is close to mirror, plane mirror.
प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, मतलब when the object is lying close to the mirror, प्लेन मिरर क्या कर रहा है, उसकी सेम साइज की इमेज बना रहा है ना, images of the same size as the size of the object, सेम साइज की बनेगी। कॉनकेव मिरर क्या बनेगा, अब ये वाला केस देखो, कॉनकेव मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी वेरी क्लोज टू द मिरर, when the object is very close to the mirror, it forms a virtual erect image, but the size of the image is large as compared to the size of the object. Can you see that on page number 235? See it on page number 235, the ray diagram, the second ray diagram, in which object concave mirror and the size of the image is big as compared to the object. So we can see it forms an enlarged image. Enlarged image. Okay, size of image is more as compared to that of the object. Now, in case of convex mirror, you can see that in case of convex mirror, right now, just we studied this, that wherever the object is placed, it forms a diminished image. Diminished image. So this is how you can differentiate between the two. आप देखो कि पास में मिरर के पास में एक ऑब्जेक्ट रख दो, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर होगा। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज उसकी बड़ी है, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट छोटा है और ऑब्जेक्ट जैसा भी इमेज उसकी और छोटी है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? विष्णु, क्या नहीं समझ आया? Vishnu, if you have any doubt, please comment. I'll clear it. कॉनकेव मिरर क्या करता है, आप देखो, कॉनकेव मिरर के लिए पेज नंबर 235 देखो, ओपन पेज नंबर 235 एंड सी द केस, द लास्ट केस इन पेज नंबर 235। ऑब्जेक्ट जब फोकस के अंदर रखा हुआ है, यानी मिरर के बिल्कुल पास रखा हुआ है जब ऑब्जेक्ट, तो कॉनकेव मिरर उसकी बड़ी इमेज बना रहा है ना। यू कैन सी इन दिस फिगर दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द साइज ऑफ द इमेज, और यू कैन सी इमेजेस ऑफ द लार्जर साइज। तो वी आर सेइंग दैट कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ एनलार्ज्ड इमेज, ऑब्जेक्ट जैसा भी उसकी बड़ी इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, नाउ कम टू पेज नंबर 236, wherever you place an object in front of convex mirror, it forms a diminished image, यानी जहां भी ऑब्जेक्ट रखोगे ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाएगा वो, so it forms a diminished image. So by seeing the image you can differentiate between the mirrors कि कौन सा मिरर हो सकता है। अगर सेम साइज की इमेज है, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज इक्वल है, देन इट इज प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट इमेज साइज, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो कॉनकेव मिरर, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इज इट क्लियर विष्णु? समझ आया? ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर। यूजेस क्या क्या है? प्लेन मिरर is mainly used as looking glasses. They are also used in solar cookers, kaleidoscopes and periscopes. Periscopes, kaleidoscope आपने पढ़ रखा है पहले। kaleidoscope एक डिवाइस होती है जो कि सारी तरफ से रिफ्लेक्ट करती है चीजों को, पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। so that is a kaleidoscope. तो इनमें काम आता है बनाने के। then concave mirror are used as reflectors in the headlight of automobiles. आगे जो रिफ्लेक्टर होते हैं, लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है वहां पे काम आता है ताकि लाइट को रोड पे फोकस कर सके।
concave mirror. They're also used as compact or sharing mirrors, as they form magnified or erect image. For the same reason, concave mirrors are also used by doctors to examine ear, nose, throat and eyes. यानी हमारे बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर भी कॉन्केव मिरर यूज करता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एनलार्ज्ड इमेज बनाता है. ठीक है. डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉन्केव मिरर टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ. अब टीथ के लिए भी एनलार्ज इमेज बना रहे हैं, इसलिए हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं. Convex mirror can be used to view much larger area than it would be possible with a plain mirror. अगर आपका rear view mirror में, Nupur, it's on page number 137. अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर की जगह आप व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर जो साइड में लगा रहता है मिरर, उसमें प्लेन मिरर यूज करते तो एक डेफिनेट एरिया बताएगा वो जितना वो देख पा रहा है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इमेज छोटी कर रहा है तो लार्ज एरिया हमें दिखा सकता है मिरर में. ठीक है. उतने ही एरिया में हमको लार्ज एरिया रोड का कवर करके दिखाएगा कि पीछे क्या क्या आ रहा है, एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर. ठीक है. So smaller, therefore they are used in rear view mirror or side view mirrors in cars and scooters. ठीक है. vehicles में इसलिए काम आता है. Is that clear? Yes or no? 237 नुपुर नेहल चैप्टर नहीं पता है क्या आप लोग को कौन सा चल रहा है? Even if you know the name of the chapter, you can book में देख सकते हो ना. You can clearly turn the pages and see which topic I am teaching right now. ठीक है. Is that clear to all of you? Now come to the next topic, which is formation of images in lenses. अब लेंस क्या होते हैं ये चीज देखते हैं. लेंस क्या होता है? लेंस इज अ let me write lens. It's a spherical, not a spherical, but it's a device which is formed by sticking two glasses together. दो ग्लास को साथ में अरेंज करते हैं हम, दो पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं. सपोज जैसे मिरर लिया था मैंने, एक पार्ट ये था एक पार्ट ये था. अगर मैं उसको मिला दूं इस तरीके से, मतलब दिस इज अ ग्लास, पॉलिश नहीं है इसलिए मिरर मत समझना, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है. ये दो ग्लास है मेरे पास, एक ये है एक ये है. इसको मैं दो तरीके से अरेंज कर सकती हूँ. या तो मैं इन दोनों को साथ में ऐसे लगा दूं इस तरह से. ठीक है. या फिर मैं इसको उठा के इधर की साइड लगा दूं तो पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा. Isn't it? These are the possible type of arrangements of these two glasses. इन दो glasses को अगर मैं पास लाके ऐसे लगा देती हूँ तो ऐसा बन जाएगा, और इसको उठा के मैं इधर लगा दूं और फिर साथ में लगा दूं तो ये ऐसा बन जाएगा. ठीक है. So it's page number 237. Why are you so much confused about the page numbers? Page number 237. ठीक है. इन दोनों को मैंने ऐसे अरेंज किया और इसको उठा के यहाँ रख दिया और ऐसे बनाया, तो आई गेट टू टाइप्स ऑफ लेंस हियर. ये ग्लास को लेके मैंने जो अरेंजमेंट किया है उससे मुझे दो टाइप के लेंस मिल गए. द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों साइड बल्जिंग है इसकी, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, रिफ्लेक्टिंग साइड दोनों बल्जिंग थी. इसमें दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग, पॉलिश नहीं है, आई मीन रफ नहीं कर रखा है हमने, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है ये. ठीक है. द नेक्स्ट वन फॉर्म्ड इज कॉनकेव मिरर. कॉनकेव, सॉरी लेंस, कॉनकेव लेंस. ठीक है. दिस इज कॉनकेव लेंस. सो इस तरीके से अगर आप स्फेयर को अरेंज, सॉरी लेंस ग्लास को अरेंज कर दोगे, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. एंड इस तरीके से अगर आप अरेंज कर दोगे समवट, हाँ लाइक दिस, तो ये बन जाएगा आपको कॉनकेव लेंस. Is that clear? These are the two types of lens. अब लेंस क्या करते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्शन का.
पहले मैं वो बताती हूँ, फिर हम लेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था? द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। एक सरफेस से लाइट बाउंस हो रही तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट केस इज, नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। Refraction. This is the second phenomena of light, which, according to which, there are two mediums. Suppose air है और water है, तो ये अलग अलग medium है ना? This is medium one. This is medium two. First medium. Let us suppose this is air and this is water. ठीक है? तो क्या होता है जब कोई सी लाइट रे इसके परपेंडिकुलर जो मैं लाइन बनाऊंगी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में बनाया था ना, वैसे ही इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो कोई सी भी इंसिडेंट रे, सपोज ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है ऐसे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंटरफेस है, मतलब द जंक्शन बिटवीन दीज टू मीडियम्स, इनका ये इंटरफेस है। यहाँ पे आके इस लाइट रे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जाना तो इसे यहाँ पे था, ऐसे जाती ना सीधे ये, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम, यहाँ पे आके इस लाइन के बाद, इंटरफेस के बाद मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे वाटर है, तो इस लाइट रे का डायरेक्शन इसकी जगह चेंज हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। दिस इज द एक्चुअल पाथ विच इट ट्रेवल्स। ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने की जगह थोड़ी सी बेंड हो गई लाइट यहाँ पे। So this phenomena is called reflection. The change in the direction of light due to the change in the medium is called refraction of light. ठीक है। दूसरा केस, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट अस सपोज अभी भूल जाओ कि ये एयर है या वाटर है, ठीक है। तब क्या डायरेक्शन, तब क्या डायरेक्शन होगा? आई विल एक्सप्लेन इट। इज इट विजिबल? दिख रहा है आप लोग को? Is the board visible to all of you? Okay. So see here. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला केस ये कि लाइट ऐसे आ रही थी, इसको जाना यहाँ पे था, इस पाथ की जगह या तो यहाँ आ सकती है, या फिर ये इस पाथ की जगह ऐसे भी तो जा सकती है ना। मतलब these are two possibilities. This is the straight line path of the light had there been no medium. अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट ऐसे सीधी चली जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने की वजह से देयर आर टू पॉसिबिलिटी। आइदर दिस रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाने की जगह इधर नॉर्मल के पास चली गई ना। दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल। सो दिस रे इज towards the normal, है ना। This ray is towards the normal and this ray is away from the normal, है ना। So refraction is the phenomena of bending of light either towards the normal or away from the normal. मतलब यहाँ जाना था लेकिन normal से और दूर हो गई। तो refraction is the phenomena of bending of light either towards the normal or away from the normal depending on which medium is the second medium जिसमें की लाइट एंटर हो रही है। ठीक है, तो अगर दो टाइप के मीडियम होते हैं, डेंसर और रेयरर, ये चीज समझो पहले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होगा कि पार्टिकल्स इसके ज्यादा पास पास होंगे, इस तरीके से पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। दिस इज अ डेंसर मीडियम। पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे सपोज
ये बॉक्स है 1 सेंटीमीटर ये है, और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और लेंथ है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये बॉक्स है। इतना ही बड़ा बॉक्स मैंने यहाँ पे भी बनाया है, ठीक है। लेकिन इतनी से एरिया में इसमें तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, और इसमें सिर्फ इतने से पार्टिकल्स हैं। तो मैं क्या कहूंगी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है इन अ यूनिट एरिया। बल्कि वॉल्यूम की बात करते हैं हम, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए एरिया समझ लो, वैसे तो वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो इन अ यूनिट वॉल्यूम इसमें क्या है, ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या है, कम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम है विच हैज मोर पार्टिकल्स इन द सेम वॉल्यूम एज कंपेयर टू द अदर मीडियम विच हैज लेस पार्टिकल्स। तो डेंसर मीडियम में लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, towards the normal, and in rarer medium light bends away from the normal, ठीक है। कम पार्टिकल्स हैं तो उसको ज्यादा दूर जाने की जगह मिल जाएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमेना समझो। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2. Let us suppose this is rarer medium and this is the denser medium, यानी इसके पार्टिकल्स पास पास हैं। ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी। दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, एट दिस इंटरफेस इसका डायरेक्शन चेंज होगा। इस इंटरफेस पे वैसे तो इसे ऐसे जाना था, स्ट्रेट लाइन में, है ना, ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे जाना था, लेकिन when light travels from rarer to denser medium it bends towards the normal, मतलब नॉर्मल की तरफ चली जाएगी इस तरीके से। एक्चुअली ये रे ऐसे बेंड हो गई, यहाँ से आके ऐसे चली गई। when the ray of light in case of refraction, when the ray of light travels from rarer medium to denser medium it bends towards the normal, सीधे जाना था लेकिन इसका पाथ इधर हो गया, नॉर्मल के पास चली गई। when the light ray जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। सेकंड केस देखेंगे, अगेन दिस इज द इंटरफेस, this is medium 1, this is medium 2. Let us suppose this is the denser medium this time and this is the rarer medium, ठीक है। this is the denser one, this is the rarer one। ये यहाँ पे लाइट रे है, सॉरी ये नॉर्मल है, ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, जो सेकंड मीडियम में बेंड होके जाती है वो होती है रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको जाना तो ऐसे था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, बट सिंस दिस इज द रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से जाएगी दूर, मतलब ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई। The light ray bends away from the normal when it goes from denser medium to rarer medium. This is the phenomena of reflection. अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ पूरा एक बार, यहाँ पे ध्यान से देखो, डेंसर और रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेयरर मीडियम इज द वन इन विच एक डेफिनेट वॉल्यूम में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और उसी वॉल्यूम में अगर पार्टिकल्स खूब सारे हैं, पास पास हैं, तो वो होगा डेंसर मीडियम। यहाँ तक समझ आया, सिर्फ इसको भूल जाओ, रेयरर और डेंसर मीडियम क्लियर हुआ, यस और नो। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी, ये क्लियर है ना एकदम, आगे बढ़े, इसको भूल जाओ। अब रिफ्लेक्शन फिनोमेना वापस देखेंगे, रेयरर और डेंसर मीडियम ध्यान में रखना, और फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे। दो चीजें होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंटरफेस, this is the interface, this is medium 1, this is medium 2, this is medium 1, this is medium 2. In the first case I am taking a rarer medium here, यहाँ पे rarer medium लिया और यहाँ पे denser medium लिया, rarer medium and denser medium, दिखा है ना आप लोग को, दिख रहा है, मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, so please confirm whether you are able to see clearly or not, because it is not being displayed on my screen due to some
प्रॉब्लम, तो आप लोग मुझे क्लियर कर दो, दिख रहा है? So medium 1 is the rarer medium, medium 2 is the denser medium. In second case, this is the denser medium and this is the rarer medium. Okay, ये चीजें ध्यान रखनी है भी. ये मैंने बना दिया नॉर्मल. Normal is just a perpendicular to this surface. इंटरफेस से perpendicular जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वही होता है नॉर्मल. तो ये मैंने नॉर्मल बना दिया. दिस इज अ लाइन perpendicular to this interface. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेंसर मीडियम. This is medium 2 and this is denser. Hope it is visible. This is denser. ठीक है? तो क्या होगा, ये लाइट रे आ रही है. This is the incident ray. In refraction, when the incident ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. मतलब इसे जाना तो ऐसे था, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी. तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, when the light ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. See the second case. This is the incident ray. In case when the light ray, incident ray travels from, एक बार देखो अभी क्लियर दिख रहा है? अभी मैं अच्छा लिख के कंप्लीट करती हूँ, तब देख लेना. In case of dense reflection, when the light ray goes from denser medium to a rarer medium, जाना तो इसे यहाँ पे था ऐसे in a straight line, but it bends away from the normal. तो मैं इसको रब करके मैं यहाँ लिख देती हूँ. It bends away from the normal. कुछ ऐसे चली जाएगी. Means it bends away from the normal. In the case when medium 2 is rarer. So these are the two cases. एक बार देख लो clearly. Is the screen clear? Give it a second and see. दिख रहा है यार? So see the two cases. I have drawn two cases here to explain the process of refraction, the phenomena of refraction. In the first case, the light ray goes from rarer to denser medium. If the light ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Okay? In case of refraction. And if the light ray, second case देखो, if the light ray goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Okay, these are the two possible conditions. There is another one which is not of that, not of pure use right now, so I'm not taking that condition here. It will study in higher classes. So as of now, just remember the phenomena of reflection in which there is a bending of light due to the change in the medium. There is a change in the path of the light due to change in the medium. At the point where the medium changes, at the interface where the medium changes, there is a bending of light. The bending of light is in such a way that if the light ray goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And when the light ray goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Light ray अगर rarer से जाती है तो जाना इसे यहाँ था, लेकिन towards the normal चली जाएगी, normal के पास चली जाएगी. In the second case, light ray वो आ रही है incident ray, जाना इसे यहाँ पे था, लेकिन when the second medium is rarer, it bends away from the normal. यहाँ जाना था लेकिन normal से और दूर हो गई. It bends away from the normal. This is the phenomenon of refraction. Is it clear to each one of you? कोई doubt है इसमें? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है. तो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अब लेंस में कैसे इमेजेस मिला आपको कल सिखाऊंगी. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास. आई मीन, इज दैट क्लियर? Definition प्रांजल रिफ्लेक्शन की है. रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन.
इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? Okay, so we'll continue this in the next class. Till then, इसको बुक में से एक बार रीड कर लेना. If there is any doubt, I'll clarify it further. So, okay, class. Thank you. Take care of you. Have a nice day.